آج کا حوالہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہوگا. ایک آواز ہو کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے. جی. جی نیکسٹ. یہ خدا کا کلام ہے. خدا کے کلام کی تلاوت پر بائبل مقدس کے اس خوبصورت سے حصے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. خدا کا شکر ہو. تشریف رکھیں. جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں آج رات اترنے والے ہیں وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اسے 2 بار اونچی آواز میں پڑھ لیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ اور ہمارے اندر رہے. جی پھر سے پڑھیں. اپنی توجہ کو دوبارہ مذکور کرنا. اپنی توجہ کو دوبارہ مرکوز کرنا، یہ آج کا ہمارا مرکزی تھاٹ ہوگا، اور اسی کو لے کر ہم خدا کے کلام کے تلاوت کردہ ان حصوں میں اتریں گے اور چند ایک باتیں خدا کے کلام میں سے لینے اور پھر سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس مضمون کی طرف جائیں، میں خروج کی کتاب کے حوالے سے چند ایک بنیادی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یاد رہے کہ یہ کتاب بائبل مقدس کی دوسری کتاب کہلاتی ہے، اور اس کتاب کو لکھنے کا سہرا خداوند کے بندہ مقدس موسیٰ کے سر ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کی پہلی 5 کتابوں کو خداوند کے اسی بندہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. ان کتابوں کو قانون کی کتابیں کہا جاتا ہے. ان کتابوں کو توریت کہا جاتا ہے، تورا کہا جاتا ہے، اور ایک ایسی کتاب کے طور پر، کتابوں کے طور پر مانا اور تسلیم کیا جاتا ہے جس میں زندگی کے گزارنے کے خوبصورت پرنسپلز دیے گئے. اور اگر کوئی ان پرنسپلز کے مطابق اپنی زندگی کو بتاتا ہے تو پھر اس کی زندگی نہ صرف اس کی اپنی ذات کے لیے، اپنوں کے لیے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنتی اور پھر بنتی چلی جاتی ہے. یہ وہی کتاب ہے جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 1440 سال پہلے لکھی گئی. اور اگر آپ اپنے گھروں میں جا کر کیلکولیٹ کریں گے تو اس کتاب کے 40 باب اور اس کی 1210 آیات ہیں. اب اس کتاب کو انگریزی زبان میں ایکسوڈس کہا جاتا ہے، اور اسی فیملی کا انگریزی ڈکشنری کے مطابق ایک لفظ ہے ایگزٹ، اور ایگزٹ کا لفظی مطلب ہے باہر جانے کا راستہ. گویا کہ خروج کا مطلب ہے باہر نکلنے کا یا باہر جانے کا راستہ.
یعنی وہ راستہ جو خدا نے مقدس موسیٰ کے ذریعے سے بنایا اور پھر قوم بنی اسرائیل کو 430 سالہ غلامی میں سے بائبل کا خدا نکال کر باہر لے گیا. اور اسی مناسبت سے اس کتاب کو خروج یعنی ایکسوڈس کہا جاتا ہے. اب آئیے ذرا اپنے اس موجودہ مضمون کی طرف چلیں. ایک سوال کے ساتھ میں آپ کو اس مضمون میں اپنے ساتھ اتارنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا مسنگ پیس کیا ہے؟ میری اور آپ کی زندگی کا مسنگ پیس کیا ہے؟ وہ کیا ہے جس کے نہ ہونے کا احساس آپ کو بار بار تنگ کرتا ہے؟ وہ کیا ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ خوف زدہ سے رہتے ہیں؟ وہ کیا ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں رک گئے ہیں، آپ کی زندگی کہیں رک گئی ہے، آپ کی زندگی کہیں سٹک ہو کر رہ گئی؟ اگر مان لیا جائے کہ زندگی ایک پزل گیم کی طرح ہے تو پھر مسنگ پیس کہاں ہے؟ زندگی کی تصویر اسی وقت بنے گی اور یہ اسی وقت مکمل ہوگی جب وہ پیس میں اور آپ ڈھونڈ لیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ مسنگ تو ہے، کچھ ہے جو ہمیں تڑپاتا بھی ہے، ستاتا بھی ہے اور دکھی بھی کرتا رہتا ہے. اگر آپ اپنے کانوں کو ٹیون کریں تو اس پیغام کے آغاز میں خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ کو آواز دے رہا ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. اور مقدس پالوس کی آواز گونجتی ہے کہ ہمارا خدا اور ہمارا خداوند ایسا ہے جو چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے. وہ نہ صرف ریپیئر کرتا ہے بلکہ وہ چیزوں کو بالکل نیا بنا دینے کی قدرت اور صلاحیت بھی رکھتا ہے. یہ کہنا چھوڑ دیں کہ یہ میرے لیے کافی نہیں. یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا. یہ کہنا چھوڑ دیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا. یہ کہنا چھوڑ دیں کہ نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں. اس قسم کے نیگیٹو قسم کے جملے کہنا چھوڑ دیں. آپ اپنے خداوند میں سب کچھ کر سکتے تھے، آپ اپنے خداوند میں سب کچھ کر سکتے ہیں. اور ہمیں تو یہاں ہاتھ مار کر یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند یسوع مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو پھر آئیے آج اسی اقرار کے ساتھ اس پیغام میں ایک قدم اور آگے بڑھیں. میرے بچوں، آج 8.8 ارب کی اس دنیا کی جو بہت سی میجر پرابلمز ہیں ان میں سے ایک پرابلم ایڈنٹیٹی کے حوالے سے بھی ہے، شناخت کے حوالے سے بھی. لوگ پزل ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اصل میں ہیں کون. لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم ہیں کون. آج ہی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور اس آرٹیکل کے ذریعے سے مجھے پتا چلا کہ پاکستان میں ہماری ایوریج عمر جو ہے اب 67 ہو چکی. پتہ نہیں پنجابی گھرانوں میں یہ سننے میں آتا ہے کہ 40 سال کے بعد کسی پنجابی کو عقل آتی ہے. اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر زندگی کے باقی کتنے سال رہ جاتے ہیں. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟
अगर 40 साल च अकल आई तो पिछे किन्ने रह गए 26-27 साल ते ओदे च की करना जी ओदे च बीवी नहीं कुछ करन देना ओदे च बच्चे ही कुछ नहीं करन देना ओदे च बच्चियां दे बच्चे ही कुछ नहीं करन देना तुहाडे को कख भी नहीं होना। इसलिए तो मैं हमेशा इस ऑल्टर से ये सिखाता हूं कि जिन्होंने कुछ बनना होता है वो 30 वर्ष की उम्र तक बन चुके होते हैं। गोरे की ये खूबी है कि वो 40 साल में रिटायरमेंट ले लेता है और फिर वो अपने साथी का हाथ पकड़ता और वर्ल्ड टूर पर निकल जाता है। हमें 40 साल के बाद अकल आती है और जिनको नहीं आनी उनको बिल्कुल सातिल भाई से ही कह रही हैं उनको कभी भी नहीं आनी। अब जरा इसको लिंक करते हैं इसको जरा पक्का कर दें। मूसा ने अपनी जिंदगी के पहले 40 साल पादी साबर साहब महल में गुजारे हैं प्रिंस के तौर पर गुजारे हैं बादशाह की बेटी का बेटा होने के नाते गुजारे हैं 40 साल। और लिखा है बाइबल में लिखा है इस दौरान उसने मिस्र के तमाम अलूम सीख रखे थे। एक बात नोट कर लें भाई पुराने अहदनामा में मुकद्दस मूसा और नए अहदनामा में मुकद्दस पौलुस से ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स कोई नहीं था। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं दावे के साथ। लिखा है बाइबल मुकद्दस में उसने अपनी जिंदगी के पहले 40 साल एक प्रिंस के तौर पर गुजारे और मिस्र के तमाम अलूम उसके पास थे। इतनी एजुकेशन इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी मूसा को अपनी शनाख्त का पता ही नहीं। आप जानते हैं कि ड्रामेटिकली किस तरह से इसके हाथ से एक शख्स की मौत हो गई और फिर किस तरह से 40 साल की उम्र में ये भागा। अब नोट करें मूसा की जिंदगी के 3 पार्ट्स हैं भाई। इसकी जिंदगी 120 सालों पर मुहित थी। इसने अपनी जिंदगी के पहले 40 साल बादशाह की बेटी का बेटा होने के नाते महल में गुजारे। फिर अगले 40 साल इसने मदियान में अपने ससुराल में गुजारे। और मुझे खुदा ने फजल बख्शा मैंने इन तमाम जगहों को अपनी आंखों से देखा। मदियान में अपने ससुराल में जिस घर में ये रहा और इसके साथ वहां जो कुछ भी हुआ उन सारी जगहों को कादिर खुदा ने हमें देखने का फजल बख्शा। बंदा 40 साल वैसे ही ससुराल में रहे थे कख नहीं रहता होगा। उसकी सारी की सारी क्वालिटीज उसकी एबिलिटीज जो हैं वो किसी गुट्ठे लग जाती हैं गुट्ठे लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब तक बाइबल मुकद्दस की रोशनी में आप निकलते नहीं हैं आप ग्रो नहीं करते। ये बाइबल का कानून है। ग्रोथ के लिए आपको अकेले होना पड़ता है निकलना पड़ता है। फिर ये तो सिस्टम है भाई ये तो बाइबल का कानून है। मर्द से नहीं औरत से कहा गया सुनाई बेटी तू ये सोच ले। बंदे को नहीं कहा तू ये सोच ले। क्या सोच ले कि तूने अपने घर की तरफ अपनी तवज्जो को नहीं रखना। अब तेरी तवज्जो तेरे नए घर की तरफ तेरे साथी की तरफ और उसके अपनों की तरफ होनी चाहिए। उसके अपनों की तरफ होनी चाहिए। अच्छा शादी के बाद भी कुछ लोग इस किस्म के इकरार से हिचकिचाते हैं। यही वजह है कि आज खानदानों में बहुत बिगाड़ दिखाई देता है। जब कोई बेटी अपनी सास को मां ही तस्लीम ना करे
जब वो अपने शौहर से छोटे भाइयों और बहनों ही को तस्लीम ना करे, उन्हें बहन के तौर पर, भाई के तौर पर तस्लीम ना करे, तो फिर बाइबल मुकद्दस की वो आयत तो पूरी होगी ना, आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे, बहू सास के खिलाफ, सास बहू के खिलाफ होगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। लेकिन बचाव का शाला एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि हम रूत की तरह फिर अपनी सास से भी कौलो इकरार कर लें। अगर कोई मुझसे आमिर पूछे तो रूत ने टेक्निकली 2 बार कौलो इकरार किया। उसने अपने बंदे के हवाले से भी किया ही होगा, यकीनन किया होगा, क्योंकि वो उसके निकाह में रही। लेकिन जब बंदा चला गया तो मुझे बिल्कुल यूं ही लगता है उसने अपनी सास के साथ फिर वही कौलो इकरार किया जो शौहर के साथ किया जाता। दोहराएंगे जरा उसको, विका दोहराएंगे जरा, यासर दोहराएंगे जरा। उसने कहा कि अब तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग, पहले नहीं सुन, अब तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। क्यों? क्योंकि ये मुआबी है भाई, ये गैर कौम में से है। अब तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। और आगे चलकर एक बहुत बड़ा जुमला दिया, कहा जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, जहां तू मरेगी मैं तेरे साथ मरूंगी। ये है शादी का अहद। लेकिन फिर से कहूंगा, अगर किसी को ये वाली शनाख्त मिल जाए तो फिर तो ठीक है ना। लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी शनाख्त क्या है, आइडेंटिटी क्या है, वो हैं कौन, उनका रवैया, उनका एटीट्यूड, उनका अमल किस तरह दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। इसीलिए तो फिर बहुत से लोग हमें देखकर आज यही कहते हैं, ये भी साडे वर्गे हो गए, इन्हां च ते साडे च हम कोई फर्क नहीं रहा। जबकि बाइबल मुकद्दस की तालीम यह है कि फर्क हमें पैदा करना है और तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद किस तरह से होगी? मेरे और आपके किरदार के जरिए से, मेरे और आपके एक्शंस के जरिए से, मेरे और आपके ईमान के जरिए से। इसलिए हमें इन बातों के हवाले से एहतियात की जरूरत है। 40 साल महल में गुजारे, 40 साल मदियान में अपने ससुराल में गुजारे, भूलिएगा ना, याद रखिएगा। मूसा का ससुर जो है वो मदियान का काहिन था, पादरी था, पादरी के घर ब्याह होया सी। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये निकाह भी बड़ा ड्रामेटिकली हुआ है ना, वो हीरो की तरह इसकी एंट्री हुई है मुकद्दस मूसा की, और फिर किस तरह से निकाह हुआ उस पर फिर कभी बात करें। लेकिन अगले 40 साल इसने वहां गुजारे तो सनी 80 साल का ये हो गया है। और जब खुदा इसे कॉल करता है, बुलाता है, वो बर्निंग बुश वाला सिलसिला, हम वो बर्निंग बुश देखकर आए। ये बुश दुनिया में एक ही है भाई, ये एक ही झाड़ी है, पूरी दुनिया में ऐसी कोई झाड़ी नहीं। और आज भी वो झाड़ी बिल्कुल वैसी की वैसी ग्रीन, पंजाबी च हरी कचूर है, बिल्कुल वैसी। आप जानते हैं कि खुदा किस तरह झाड़ी में से होकर इस पर जाहिर हुआ और इसे एक टास्क दिया। और जब इसे टास्क दिया तो आज के हवाले में इसने कहा, मैं जाकर क्या बताऊं कि किसने मुझे भेजा है। अरे भाई, जब खुदा भेज रहा है तो खुदा वसीला भी बनाएगा ना, आप हीला तो करें। लेकिन कई बार अफशा बेटा, कई बार सनी बेटा, ऐसा होता है कि हमारे एक्सक्यूजेस ही खत्म नहीं होते।
एक्सक्यूजेज ही खत्म नहीं होते। बहन चर्च नहीं आई, पैसा बुखार चढ़े, अरे भाई बुखार ही तो लेकर आना था यहाँ, ये तो शिफा खाना है, यही तो दवा खाना है, आप बुखार लेकर घर पे पड़ी नहीं, कमाल हो गया। इतने एक्सक्यूजेस हैं हमारे पास, इतने एक्सक्यूजेस हैं, इतने एक्सक्यूजेस हैं कि हद नहीं। आज के हवाले में मूसा ने भी अंबार लगा दिया। क्यों अंबार लगाए? सीखें इस बात को। मैं अपने उसी पॉइंट पर हूं, क्योंकि ये अब तक ना सिर्फ खुदा को उस तौर पर जान ही नहीं सका, पहचान ही नहीं सका। कौन है भाई, मैं क्या बताऊंगा। और आगे चलकर इसी बयान को आप पढ़ें तो उसने खुदा से दरखास्त की, लिखा है उसने दरखास्त की और कहा कि नहीं, आप मेहरबानी से किसी और को भेज दें, आप किसी और को भेज दें, ये टास्क किसी और को दे दें, मुझसे नहीं होगा। और एक्सक्यूज क्या दिया? एक्सक्यूज ये दिया कि मेरी तो जुबान ठीक नहीं, मैं तो थक्का हूं, मैं तो रुक कर बोलता हूं, और खुदा को ये कहना पड़ा ये जुबान बनाई कि नहीं। तुझे किसी ने अन्ना या काना है या बहरा बना के भेजता है, कौन भेजता है? क्या बात कर रहा है मूसा? ये जुबान किसने बनाई? और अगर तेरा यही एक्सक्यूज है तो फिर कोई बात नहीं, मैं भी तुझे बता देता हूं, इस्तेमाल मैंने तुझी को करना है, तुझी को, तेरी जान नहीं छूटेगी। अब मैं तेरे भाई को तेरे साथ तेरी जुबान बनाकर खड़ा करूंगा। एक बात नोट कर लें प्यारे बच्चों, जो टास्क, जो खिदमत खुदा ने आपको दी है वो खुदा ने आप ही से दी है। इसलिए एक्सक्यूजेस छोड़ दें और ये कहना भी छोड़ दें, नहीं भाई साहब किसी और को प्लीज बोल दें। अरे क्यों भाई, किसी और को क्यों बोल दें? आप क्यों नहीं, आप करें ना। अब मूसा ने पूछ लिया, अच्छा चल फिर मुझे ये बता कि मैं जाकर क्या कहूं, किसने मुझे भेजा है? अब गौर से सुनिएगा, खुदा ने मूसा से मुखातिब होकर कहा, जाकर कहना मैं जो हूं सो मैं हूं, ने मुझे बादशाह तेरे पास भेजा है। मैं जो हूं सो मैं हूं। नोट करिए भाई, बाइबल मुकद्दस में खुदा के कम से कम 100 से ज्यादा नाम मौजूद हैं, 100 से ज्यादा नाम। अब ये उन नामों में से एक ऐसा नाम है जो बड़ा मोमल सा दिखाई देता है, इसकी समझ नहीं आती, भाई ये क्या नाम हुआ, जो मैं हूं सो मैं हूं। अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है, नोट करें, पुराना अहदनामा नए अहदनामे में आकर खुलता है और नया अहदनामा पुराने अहदनामे में पोशीदा है। बहुत सी बातें जो हैं वो नए अहदनामे में आकर खुलती हैं। मेरे यीशु ने फिर इस राज को खोला कि जो मैं हूं सो मैं हूं। अब बताता हूं कि मैं क्या हूं। तो फिर कहा यूहन्ना की अंजील में, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। फिर कहा दरवाजा मैं हूं। फिर कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। फिर कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। फिर कहा चरवाहा मैं हूं। फिर कहा कयामत और जिंदगी मैं हूं। और फिर कहा दुनिया का नूर मैं हूं। मेरे यीशु ने इस नाम को मुकम्मल कर दिया। मैं जो हूं सो मैं हूं। अब मैं बताता हूं कि मैं क्या हूं, और इस नाम को मेरे यीशु ने मुकम्मल किया। प्रेज प्रेज गॉड। तू जा और जाकर बादशाह से कह दे, मैं जो हूं सो मैं हूं ने मुझे तेरे पास भेजा है, सो तू मेरे लोगों को मेहरबानी से जाने दे। फिर से कहूंगा, शनाख्त आज मसला बनी हुई है, लोग पजल हैं।
उनको पता ही नहीं कि वो क्या हैं। लेकिन मैं आज रात आपको बता दूं, आप बड़े कीमती लोग हैं भाई, आप बहुत कीमती लोग हैं। बाइबल का खुदा पुकार पुकार कर मेरी और आपके लिए यशायाह की किताब में कह रहा है कि तू मेरा है, 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 और तू मेरे लिए बेशकीमत और मुकर्रम है। तू मेरे लिए इतना मुकर्रम है कि मैं तेरे लिए उम्मतें और ममलकतें देने को तैयार हूं। तेरे लिए उम्मतें और ममलकतें देने को मैं तैयार। तू मेरे लिए बड़ा की इतना कीमती है कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। इतना कीमती है कि मैंने तुझे अपनी आंखों में रखा हुआ है। इतना कीमती है कि मुझे तेरे सर के एक एक बाल का पता है, इनकी तादाद का पता है। इतना प्यार करता है हमारा, इतना प्यार। और मैंने कितनी बार कहा इतना प्यार। इसीलिए तो लिखा है खुदा ने दुनिया से इतना प्यार किया। कितना प्यार? जितना प्यार सनी बेटा कोई कर ही नहीं सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं, इतना प्यार किया। काश कि मैं और आप भी अपने बाजू फैलाकर यही कहा करें कि सचमुच खुदावन मैं भी तुझे इतना इतना प्यार करता। आगे बढ़ेंगे भाई, जल्दी से और खत्म करेंगे। आप शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम है भाई। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप उसकी चरागाह की भेड़े हैं, आप मामूली लोग नहीं हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आप ही फकत वो लोग हैं जो आसमानों की वसतों में बसने वाले खुदा को बाप कहते हैं, वरना दुनिया के किसी भी मजहब में उसको बाप कहने की तौफीक नहीं। लेकिन लिखा है कि जितनों ने उसे यानी मेरे यस्सु को कबूल किया, यस्सु ने उन्हें खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा। ये हक हमें उसकी तरफ से मिला। हम बड़े कीमती लोग हैं भाई, इसलिए ना वो असाओं की तरह एक कौले दाल देना बिक जाया कर। एक कौले दाल दे होते एक वक्त के खाने के लिए अपने आप को बेच ना दिया करेंगे। आप बहुत कीमती लोग हैं, आप बहुत कीमती। और मैं यहां तक ये कहूंगा, खुदा ने आपको यहां रखा हुआ है, खुदा आपको यहां देखना चाहता है। आप भी यहां सेटल हो जाती हैं। क्यों भाई? रॉयल फैमिली के लोग हैं भाई, आप शाही काहिनों का फिरका है भाई। आपका मयार ये है, ये नहीं है। इसलिए अपने मुकाम को, अपनी शनाख्त को, अपनी आइडेंटिफिकेशन को पहचाने भाई, पहचाने कि आप कौन है। चले आगे चलेंगे। मूसा ने बड़े बहाने बनाए लेकिन खुदा ने उसे नहीं छोड़ा। वो दरखास्त करता रहा, वो एक्सक्यूजेस देता रहा, लेकिन खुदा ने उसकी एक नहीं मानी। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने मूसा ही को क्यों कौम बनी इस्राएल के पहले कायद के तौर पर चुना? एक बहुत बड़ा सवाल है। देखे ना, इतना बड़ा गिरोह था। मिस्र की गुलामी में से कितने लोग निकले हैं? खरूज की किताब के 12वें बाब की रोशनी में वो कोई 6 लाख मर्द थे। लिखा है बाल बच्चों को छोड़कर, बीवी और बच्चों को छोड़कर। और ये उस दौर की बात है जब अभी तक शरा नहीं थी, तो एक बंदे की 2-2, 4-4 बीवियां भी थी। और अगर एक बीवी में से एक भी बच्चा लगा दिया जाए, एक ही बीवी मान लें, तो ये तादाद 18 से 20 लाख की है। और फिर लिखा है जब वो वहां से निकले हैं तो उनके साथ एक मिली जुली गिरोह भी उनके साथ थी। यानी वो पड़ोसी जो उनके साथ रहते थे, उन्होंने कहा कितने चले हो? उन्होंने कहा सीधे छड़ चले हैं। उन्होंने कहा नहीं असं भी नाल ही जाना। उन्हें नहीं देखो ना साड़ी तो एडी अच्छी बनी है, साड़ी तो वेवलेंथ मिलती है, फ्रीक्वेंसी मिलती है, नहीं थोड़े नाल ही।
और वो भी साथ चले गए। और अगर रफली कहा जाए अंबर बेटा, तो ये कम से कम मेरी अकल के मुताबिक कोई 22 से 25 लाख का मजमा था, बहुत बड़ा मजमा। और मैं जॉर्डन में ये सारे का सारा मजमा, जहां जिस तरह से ये चलते रहे, जहां जहां ये स्टे करते रहे, हम कलीसिया के लोग अपनी आंखों से वो सब कुछ देख कर आए, अपनी आंखों से देख कर। अब खुदा ने मूसा से ये कहा, तू मेरे कौम को लीड करेगा, तू उन्हें मिस्र की गुलामी में से निकालेगा। तू क्यों? तू ही क्यों? इसलिए क्योंकि तू अपनी जिंदगी से ये गवाही दे सकता है कि बाइबल का खुदा बचाने वाला, छुड़ाने वाला और आजाद करने वाला खुदा है। मूसा की जिंदगी पर गौर करें, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वक्त बहुत हो चला। ये वो बच्चा है जिसे खुदा ने मौत से बचाया है। ऑर्डर क्या था? बादशाह की तरफ से ऑर्डर क्या था? जितने नर बच्चे हैं वो सारे मार दिए जाए। इसको बचा लिया गया। अब इसकी बड़ी बहन ने और इसकी मां ने एक टेक्निक, एक तरीका इख्तियार किया, टोकरे में रखा और उसको वहां छोड़ा जहां आगे चलकर बादशाह की बेटी जो है वो बात ले रही थी। वो बच्चा टोकरे में उस तक चला गया और फिर किस तरह से उसने उस बच्चे को उठाया और उसे अपना बेटा बना लिया। हैरान कुन बात यह है रीना बेटा कि इसी बच्चे की बहन वहां चली जाती है और बादशाह की बेटी को कहती है कि मैं उसके लिए कोई दाया या कोई औरत का इंतजाम करूं जो इसकी पालना करे। और वो ड्रामेटिकली अपनी मां ही को वहां ले जाती है और मां अपने इस बच्चे को दूध पिलाते हुए अपना ईमान इसमें ट्रांसफर करती है। उन ध्यान करिए, मुझे नहीं पता कि आज की माएं क्या करती हैं, मुझे नहीं पता आज की माएं क्या करती हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में यह देखा है कि पंजाब में हमारी बुजुर्ग माएं अपनी बहुओं को और बेटियों को यह तलकीन किया करती थीं कि जब वो अपने बच्चों को फीड करवाएं तो उनके हाथ पर प्यार, उनके माथे पर हाथ से प्यार करें, साइन ऑफ क्रॉस बनाएं, गीत गाती चली जाएं और खुदा के कलाम की आयात उस दौरान बच्चे के कान में ट्रांसफर करती चली जाएं। आजकल बच्चे नहीं है, इसके बगैर तो पैदा होने वाले बच्चे भी दूध नहीं पीते और सत्यानाश करके रख दिया हुआ, सत्यानाश करके रख दिया हुआ, ज़हनी तौर पर भी, दिली तौर पर भी, आंखों के तौर पर भी और ईमान के तौर पर भी। हमारा तो यही सिस्टम था और ये वही बात है जो मुकद्दस पौलुस तीमुथियुस को कहता है। हर बात के पीछे एक बात है भाई। जब वो उसके ईमान की तारीफ करता है तो कहता है, आए तीमुथियुस ये तेरा ईमान नहीं, ये असल में जनरेशन टू जनरेशन चला है। ये ईमान तेरी नानी का था, तेरी नानी से तेरी मां में और तेरी मां से तुझ में आया। मूसा को दूध पिलाते हुए उसकी मां ने उसे बहुत कुछ बता रखा था, लेकिन तजर्बा नहीं था। कौन है भाई? क्या बताऊं जाकर? और फिर खुदा ने इसी बच्चे को, मूसा के नाम का लफ्ज़ी मतलब है पानी से निकाला हुआ, इसी बच्चे को खुदा ने ये शर्फ बख्शा कि इसने सबसे पहले खुदा का दीदार हासिल किया। मूसा एक ऐसा शख्स है, बाइबल मुकद्दस का पहला शख्स जिसने रूबरू फेस टू फेस खुदा से कलाम किया। और हम वो जगह भी देख कर आए जहां इसे 10 कमांडमेंट्स दिए गए और जहां जिस पहाड़ पर ये चढ़कर खुदा से बातें किया करता था। बड़ा जरूरी है हमें अपनी शनाख्त का पता होना चाहिए, हम कौन हैं। इस सारे प्रोसेस में से गुजरने के बावजूद
उसे थोड़ा सा पुश करना पड़ा और खुदा को ये कहना पड़ा कि तू ही, क्यों तू ही? इसलिए क्योंकि तेरी जिंदगी में जो काम मैंने किया है ये गवाही का दर्जा रखता है, और जब ये गवाही लोगों के सामने खड़ी होगी तो फिर लोग मेरे गवाह बनकर तेरे पीछे पीछे चलेंगे, गोया कि मेरे पीछे पीछे। अपनी जिंदगी में गवाही रखें भाई, अपनी जिंदगी में गवाही रखें। और मैं आपको एक छोटी सी तलकीन करने लगा हूं, अपने घर में एक छोटा सा शो केस बना के ना, छोटा सा शो केस बना के रखें। जो जो बच्चे बड़े होते हैं और जो जो खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है, माइलस्टोन्स के हवाले से कुछ यादगार चीजें उस शो केस में रखें और बच्चों को कभी कभी बताया करें कि बेटा ये वाली चीज जो है ना, ये उस यादगार के तौर पर है जब तेरे अब्बा की जिंदगी में खुदा ने ये किया था, जब मेरी जिंदगी में बेटा खुदा ने ये किया था, जब हमारे खानदान की जिंदगी में खुदा ने ये किया था, हमने यादगार के तौर पर ये चीज यहां रख दी है। बाइबल का खुदा चीजों को यादगार बनाता है। आपको मिस्र जाने का मौका मिले ना, तो बर्निंग बुश के इर्द गिर्द जितने भी माउंटेन हैं, जितने भी पहाड़ हैं, ठीक है, वहां तो बिजनेस है। आप कहीं से भी पहाड़ को तोड़ें, उसकी कोई चिपर शिपर तोड़ दें, है ना, जहां से आप उसे तोड़ेंगे अंदर बर्निंग बुश की तस्वीर आपको दिखाई दी। मेरे घर पर आए, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आप उस पत्थर को लेके फिर तोड़ें, जितनी बार तोड़ेंगे हर पत्थर के छोटे बड़े हिस्से पर आपको बर्निंग बुश की तस्वीर दिखाई दी। बाइबल का खुदा ऐसा खुदा है जिसने प्रॉमिस लैंड में दाखिल होते हुए जब यरदन को दो टुकड़े किया तो बनी इस्राएल कौम के दूसरे बड़े लीडर को कहा 12 पत्थर यहां से निकालकर यादगार के तौर पर यहां गाड़ दो। हम उन पत्थरों को देख कर आए हैं, हम उस जगह को देख कर आए हैं जिन पत्थरों के साथ खड़ा होकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दिया करता था। यादगार के तौर पर गाड़ दो। क्यों? क्योंकि लिखा है जब तुम्हारी औलाद तुमसे ये पूछे कि खुदा ने हमारे साथ क्या किया, हमारे खानदान के साथ क्या किया, तो उन्हें पकड़ कर ले आना और कहना कि ये पत्थर इस बात की यादगार हैं कि बाइबल के खुदा ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। तो एक सवाल करने लगा, आपके पास क्या सबूत है? यादगार के तौर पर आपके पास क्या है जो आप अपने बच्चों को दिखाकर ये बता सकेंगे कि बाइबल के खुदा ने आपके लिए कुछ किया है? अगर आपकी ये प्रैक्टिस नहीं, आज से शुरू कर दें भाई। कुछ चीजें यादगार के तौर पर बनाकर हैं, शोकेस बनाकर रखें, उसमें डालते चले जाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता हो कि खुदा ने क्या किया है। चलें खत्म करेंगे। एक छोटी सी बात मैं आज इस पैगाम के इख्तिताम पर आपको कहना चाहता हूं। मेरे और आपके लिए खुदा के ख्यालात का मजमुआ, उसका साइज बहुत बड़ा है। मेरे और आपके लिए उसके प्लान मुख्तलिफ हैं। मून के लिए मुख्तलिफ है, भाई इस्राफील के लिए मुख्तलिफ है, बेटे के लिए मुख्तलिफ है, इशफाक के लिए मुख्तलिफ है, मेरे लिए मुख्तलिफ है। लेकिन इशफाक याद रखना है, जो कुछ आपकी जिंदगी के लिए खुदा का प्लान है, खुदा अपना इरादा कभी नहीं बदलता। खुदा नहीं बदलता, खुदा अपना इरादा कभी नहीं बदलता। मुकद्दस मूसा की जिंदगी से हम ये सीखते हैं, यूसुफ की जिंदगी से हम ये सीखते हैं, दाऊद की जिंदगी से हम ये सीखते हैं, पतरस की जिंदगी से हम ये सीखते हैं, आस्तर मलका की जिंदगी से हम ये सीखते हैं, यूना की जिंदगी से हम सीखते हैं। खुदा जब इरादा कर लेता है फिर वो अपने इरादे से हटता नहीं। जहां उसने आपको इस्तेमाल करना है वहां आप ही को करना है। तो फिर इस्तेमाल के लिए जरूरी है ना अपने फोकस को रीसेट करेंगे, रीसेट करें अपने फोकस को। मुमकिन है कि मैं और आप अपने फोकस से हटे हुए हैं, अपने गोल्स से हटे हुए हैं। खुदा का जो मेरे और आपके लिए ड्रीम है और जो मेरे और आपके वालिदैन का मेरे और आपके लिए ड्रीम था, हम उससे हटे। हम पता नहीं क्या कर रहे हैं,
خدا نے کچھ اور کہا تھا, پلان کچھ اور تھا, اسی کچھ اور کرن رہے ہیں, ساری اولاد کچھ اور کرن رہی ہے. اپنے فوکس کو ریسیٹ کریں گے. اگر آپ برکت کو لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فوکسڈ ہونا پڑے گا. فوکسڈ. اگر آپ برکت کو لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ٹارگٹ کو ریسیٹ کرنا پڑے گا, اپنے ڈریمز کو ریسیٹ کرنا پڑے گا, اپنے گولز کو ریسیٹ کرنا پڑے گا. جب تک ہم ریسیٹ نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی منزل پر افتخار بیٹیا پہنچ نہیں پائیں گے. تو آج کا پیغام کیا ہے؟ آج کا پیغام پیارے بچوں یہی ہے, میں اور آپ اپنے فوکس کو ریسیٹ کریں گے. موسیٰ سے تو 80 سال کی عمر میں ایسا کیا گیا, اسے بتایا گیا کہ بھائی تیرے لیے پلان یہ ہے, اگلے 40 سال تو نے یہی کرنا ہے. اپنی اپنی عمر کا ذرا جائزہ لے لیں. میں بھی 60 سال کا ہو گیا, آپ پیچھے رہ کتنے گئے؟ ایوریج عمر کے حساب سے کتنے رہ گئے؟ 7 سال. اب 7 سال میں کہنا, اب یقین مانے میں آلٹر پر کھڑے ہو کر آمر کہتا ہوں, میں ہر روز صبح 4 بجے اٹھ کر یہ دعا کرتا ہوں, خداوند یہ 7 سال مجھے دے دینا. 7 بڑا زبردست عدد ہے. یہ 7 سال تو مجھے ضرور دے دینا, کیونکہ اب ڈیلیوری کا ٹائم ہے, ڈیلیورنس کا ٹائم. اب مزہ آتا ہے خدا کے کلام کی سچائیوں کو بیان کرنے کا. تو بس تھوڑا سا موقع دے دینا کہ ان آنے والے 7 سالوں میں تھوڑی جان بھی رہے, عقل بھی ٹھیک رہے, قوت بھی رہے, اور میں ڈیلیور کر سکوں. تو پھر آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں, 30 سیکنڈ کا ایک چھوٹا سا پاز لیں گے اور خداوند سے کہیں گے کہ خداوند تو میرے فوکس کو ریسیٹ, میرے ذہن کو, میرے دل کو, دماغ کو, میرے ڈریمز کو, میرے گولز کو ریسیٹ کر. مجھے ایک نیا بنا, نئی پیدائش کے تجربے سے گزار, تاکہ واقعی میں تجھے جان پاؤں, پہچان پاؤں, اور یہ جان لوں کہ میں کیا ہوں, کون ہوں. پھر خداوند تیرے کلام کے ترازو میں جب تولے گئے ہیں ہم بہت کم نکلے. ہمیں معاف کر, ہم پر رحم کر, ترس کھا, اور ہمیں چیزوں کو ریسیٹ کر کے آگے بڑھنے کا بھاری فضل بخش. اپنے ان بچوں کو برکت دے, اور زندگی کے سارے ٹاسک جو ہیں ان کو مکمل کرنے کا فضل بھی بخش دے, تاکہ یہ تیرے پاس آتے ہوئے کہہ سکیں کہ جو کچھ تو نے مجھے اس دنیا میں کرنے کو دیا تھا میں نے اسے تمام کیا ہے, میں نے اسے پورا کیا ہے. ہمیں ایسا کرنے کا بھاری فضل بخش دے. سلامتی کے ساتھ رخصت کر, حفاظت کے ساتھ ہماری منزلوں تک لے جا, یسوع کے نام میں, آمین.